رمضان کریم رمضان کریم رمضان کریم۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پہ جانے سے قبل ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری تھا۔ ایک بار گفتگو ہم وہیں سے کنٹینیو کریں گے، اپنے موضوع پر آئیں گے، کوشش کریں گے کہ آج اس پلیٹ فارم سے کچھ سیکھ سکیں، اپنی رہنمائی کی جا سکے، آپ کی رہنمائی بھی کی جا سکے۔ اور موضوع پر جانے سے پہلے ایک بار ہم شامل گفتگو کر لیتے ہیں۔ چودھری لائق افتخار احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور 2005 سے آپ نے اپنے شعبے کا آغاز کیا، اور آپ کی جو تعلیمی اسناد آپ نے حاصل کی وہ کامرس کے شعبے میں حاصل کی، نہ صرف زمین.com بلکہ اس کے علاوہ جو اور بہت سارے پروجیکٹس تھے جو کہ مارکیٹنگ کے حوالے سے تھے اور لوگوں کی فلاح و بہبود کے حوالے سے تھے، اس میں آپ نے جو ہے کردار ادا کیا اور بہت سارے ایسے پروجیکٹس میں اپنا نام کمائے۔ تو لائق صاحب، اگر آپ سب سے پہلے یہ بتا دیجیے کہ زمین.com کے پلیٹ فارم سے کیا کیا خدمات لوگوں کے لیے کی جا رہی ہیں، اور کیا فرق ہے جو دیگر پروجیکٹس ہیں؟ آج کل تو بہت زیادہ پروجیکٹس ہم دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ میں ہیں، تو آپ زمین.com میں اور جو دیگر پروجیکٹس ہیں ان میں خاص فرق کیا ہے؟ اگر کسٹمر یہ زمین.com کو چوز کرتے ہیں زیادہ تو کن وجوہات کی بنیاد پہ کرتے ہیں؟ جی میڈم، اس میں یہ ایڈ کروں گا کہ آپ زمین.com سے پہلے نارملی یہی ہوتا تھا، اف دا پرسن وانٹ ٹو بائی اے پراپرٹی تو ڈیفینیٹلی وہ ڈیلرز کے ساتھ کانٹیکٹ کرتے تھے، پرنٹ میڈیا میں ڈفرینٹ جو ہیں نیوز پیپرز وغیرہ ان سے وہ انفارمیشن لیتے تھے۔ وی ایکٹ ایز اے برج بٹوین دا بائر اینڈ اے سیلر۔ ہم لوگ آن لائن ان چیزوں کو پوسٹ کرتے ہیں، ڈیلرز ہیں وہ کلاسیفائڈ ایڈز دیتے ہیں، اس کے اندر وہ پوسٹنگ لگاتے ہیں پراپرٹی کی، سیلرز اپنی پراپرٹیز لگاتے ہیں۔ تو جو لوگ یہاں بھی بائنگ کرنا چاہتی ہیں، جو ایکسپیرٹس ہیں جو پاکستان سے باہر ہیں، انہوں نے اگر پاکستان میں کوئی بھی پراپرٹی بائی کرنی ہے، سپوز لاہور میں بائی کرنی ہے، ڈی ایچ اے میں کرنی ہے، تو ہماری ویب سائٹ پہ جاتے ہیں، لاہور کلک کرتے ہیں، ڈی ایچ اے کلک کرتے ہیں، ایک اسپیشل وہ سیکٹر اے بی سی ڈی جو بھی کرنا ہے اس کو کلک کرتے ہیں، تو اس پہ جو بھی پلاٹس فور سیل ہوتے ہیں وہ ساری انفارمیشن ان کو مل جاتی ہے۔ دے کین ڈو دیئر ہوم ورک اینڈ دے نو وٹ از اے فیئر پرائز آف دا پراپرٹی، اس طریقے سے کہ ان کے سب کی ایک قسم کا کوئی آپ کہہ سکتے کہ انفیئر کام نہیں ہوتا کہ ان سے کوئی ایکسٹرا پرائز چارج کر لے اور کوئی اپنا مارجن رکھ لے۔ اور اس کے علاوہ ہوا کیا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ لاہور کے پہلے کراچی اور اسلام آباد واز ورٹیکل۔ آپ کراچی میں آپ بڑی ہائی رائز بلڈنگز ملتی ہیں جو پارٹیشن کے بعد بھی بنی، اسلام آباد جب کیپٹل بنا پاکستان کا تو وہاں ورٹیکل بلڈنگز بہت آئیں، لاہور واز ناٹ ورٹیکل۔ لوگ اسٹیٹ میں یہی کرتے تھے کہ آپ کو ہاریزونٹل پراپرٹی جس میں یور اون لینڈ اینڈ یور اون اسکائی گھر خریدنا پڑتا تھا۔ اب عام بندے کی رینج سے گھر باہر نکل گیا، ایک 5 بندے کے گھر لینے کے لیے بھی 2 سے 2.5 کروڑ روپیہ چاہیے۔ تو زمین.com کا ایک بڑا میجر رول ہے کہ ہم لوگوں نے سب سے پہلا پروجیکٹ جو کیا وہ مین راون روڈ پہ تھا ود دا نیم آف آئیکن ویلی 1۔ ایک 5 بندے کے پلاٹ کے اوپر 3 پراپرٹیز بنائیں گی، گراؤنڈ فلور، فرسٹ فلور اینڈ سیکنڈ فلور، ان کو الگ الگ کر کے اپارٹمنٹ ہومز کے نام سے ان کو انٹروڈیوس کروایا، اور وہ کنسیپٹ بہت ہی اچھا چلا بیکاز وہ رینج آ گئی 6-7 ملین، 5 ملین، 4 ملین لوگوں کی رینج میں آ گیا۔ پلس لوگوں کو پوسٹ پوزیشن پلانس دے دیے کہ آپ 5 سال میں پیمنٹ کریں، آپ کو 2 سال میں، 1.5 سال میں، 2.5 سال میں قبضہ مل جائے گا۔ تو بڑے لوگوں کے لیے ایزی ہو جاتا تھا دیٹ یو آر لیونگ ان یور اون پراپرٹی اور یو آر پیئنگ ناٹ دا رینٹل، یو آر پیئنگ دا انسٹالمنٹ آف دا پراپرٹی۔ اس کے علاوہ پھر ایک لائف اسٹائل لے کے آئے، جب ایکسپرٹس باہر سے یہاں آتے ہیں تو لوگوں کو باہر جا کے یو کے میں، دبئی میں، سعودیہ میں ایک لائف اسٹائل کی عادت ہوتی ہے کہ انڈر ون روف، انڈر ون بلڈنگ دے ہیو کلب، جم، سینما، سوئمنگ پول، سوانا، دے ہیو پاور بیک اپ، دے ہیو بیسمنٹ پارکنگ، دے ہیو سیکورٹی۔ تو یہاں یہ پرابلمس بہت زیادہ تھیں۔ تو اب یہ ہے کہ ون دا پیپل بائی، پاکستانی لوگ بھی لیتے ہیں جو پاکستان سے باہر گئے ہیں، ایکسپرٹس لوگ واپس آتے ہیں، تو ان کے لیے وہ بڑا ایزی ہوتا ہے دیٹ دے آر لیونگ ان اے ون گیٹڈ کمیونٹی۔ اسی کے اندر ان کو ساری فیسلٹیز ہے، پلمبر چاہیے، الیکٹریشین چاہیے، اور ساری فری فیسلٹیز ان کو مینٹیننس پہ چارج کی جاتی ہیں۔ آج کل جو زمین.com کے پروجیکٹ ہم لوگوں نے ڈی ایچ اے میں گولڈ کرسٹ کیا، ڈی ایچ اے رایا کیا، جس کے نیچے شاپنگ مال بھی ہے، مکس یوز بلڈنگ ہے، ہوٹل اپارٹمنٹس بھی ہیں، سروس اپارٹمنٹس بھی ہیں، فارم ہاؤسز بھی ہیں، پلاٹس بھی ہیں۔ سو دیر از اے لارج ورائٹی آف پراپرٹی، اینڈ ہمارے پاس زیادہ تر جو اسٹاف ہوتا ہے وہ کافی کوالیفائڈ ہے، موسٹ آف دیم آر گریجویٹس اینڈ ماسٹر ڈگری ہولڈرس۔ ان کی باقاعدہ پراپرٹی کی ٹریننگ کی جاتی ہے، اینڈ دین دے بیکم دا ڈاکٹر آف دا ریل اسٹیٹ۔ کوئی بندہ بھی ہمارے پاس آتا ہے، وی جسٹ گیو دیم offer them a cup of coffee and tea and a high tea. We brief them all the properties under one roof. اس کی ان کو پیمنٹ پلانس ان کو دیے جاتے ہیں، ان کی پرائسز ساری شو کی جاتی ہیں، پلس اس کے علاوہ ان کا سائٹ کا کنسٹرکشن کا جو اپڈیٹ ہوتا ہے وہ بھی ویو کرایا جاتا ہے کہ کتنا کام ہو چکا ہے، اور اگر وہ چاہیں تو ہمارے اپنے ڈرائیورز اور کارز ہوتے ہیں جو ان کو سائٹ پہ لے کے جا کے سائٹ وزٹ بھی کرواتے ہیں۔ تو یہ بڑا ایزی ہو جاتا ہے، ایون دا پیپل ہو آر ناٹ لیونگ ان پاکستان، تو ان کی فیملی میں ان کی وائف ہیں، ان کی بیٹی ہیں، ان کی مدر ہیں، تو ان کو پک اینڈ ڈراپ کر کے سائٹ لوکیشن دکھائی جاتی ہے تاکہ وہ لوگ اپنا ڈیسیژن کر سکیں۔ تو دس از اے چینج واٹ وی ہیو ڈن ان اے مارکیٹ۔ ٹھیک ہے، اور یہ لائق صاحب بڑی انپورٹنٹ چیز ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ اوورسیز پاکستان بہت زیادہ نیگلیکٹ کیے جاتے ہیں، اور بڑی اچھی کاوش ہے کہ اگر زمین.com میں اس چیز کو بھی ساتھ لے کر چل رہا ہے۔ یہ بتا دیجیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیونکہ سرمایہ کاری کے شعبے سے بھی آپ کا تعلق رہا ہے، تو یہ بتا دیں کہ سرمایہ کاری کے شعبے میں کیا بہترین پورٹ فولیو ہوتا ہے پاکستان میں، اور دوسرا یہ بھی بتا دیں کہ پاکستان کے ترقیاتی شعبے میں
Zameen.com कोई किरदार अदा कर रहा है अपना? जी आपको ये बताऊं, देखिए आप एक जब बात करते हैं किसी बिल्डिंग बनने की, आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आते हैं तो उसके साथ 40 इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व हैं, जिसके अंदर आपका मिस्त्री है, आपका ठेकेदार है, आपका प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है, वुड वर्क वाले, एवरीथिंग छोटे लेवल से पे। आप देखिए कोविड भी था तो उस दौर के अंदर भी क्योंकि प्रॉपर्टी को स्पेशल एमनेस्टीज वाला दी गई ताकि कंस्ट्रक्शन चलती रहे, और कोविड में भी लोगों को जॉब्स मिलती नहीं, तो मिस्त्री, मजदूर, ठेकेदार, कोई बंदा आपका कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन फ्री नहीं हुआ, उन लोगों को रोजगार मिलता रहा। तो जब काम चलता है, जब एक साइकिल चलता है, तो बिकॉज वी आर इन द वर्टिकल प्रॉपर्टी, तो उसकी वजह से अब ये है कि अगर आप लाहौर में किसी भी कोने पे जाएं, आप MM आलम रोड पे जाते हैं, आप ड्राइविंग रोड पे आते हैं, आप DHA में जाते हैं, तो हर दूसरी बिल्डिंग पे अल्हम्दुलिल्लाह आपको Zameen.com का नाम जरूर मिलेगा। बिकॉज यू नो एक प्रॉपर्टी को बनाना के लिए कैश फ्लो चाहिए, कैश फ्लो बनाने के लिए कोई ऐसी कंपनी चाहिए जो उसे प्रॉपर मार्केटिंग स्ट्रेटजी बना के दे कि कौन सी TV पे जाना है, कौन से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जाना है, डिजिटल मीडिया में जाना है, कौन सी होर्डिंग्स लगानी है, कौन से स्टीमर्स लगाने हैं, कैसे मार्केट करना है, कैसे एंड यूजर को ब्रीफ करना है कि हम आपको क्या चीज़ देना चाह रहे हैं, और उसको कैसे अपने ब्रोशर में एक तरीके से एक्सप्रेस करना है। सबसे बड़ी बात होती है लोगों की क्रेडिबिलिटी की, कि जो प्रॉपर्टी मैं लेने जा रहा हूँ, क्या ये कल को मुझे प्रॉपर्टी मिलेगी, इसकी ड्यू डिलिजेंस। तो हमारा एक लीगल डिपार्टमेंट है, एक एक्विजिशन डिपार्टमेंट है, हम लोग उस प्रॉपर्टी की पूरी ड्यू डिलिजेंस करते हैं, उसकी सारी अप्रूवल्स, उसकी LDA की, टीपा की, IPA की, हर किस्म की अप्रूवल्स, और बाद में उसकी जो कंस्ट्रक्शन हो रही होती है उसके अंदर भी हमारे डिफरेंट क्वालिटी कंट्रोल सर्वेज हैं जो विजिट कर रहे होते हैं कि जो जो चीज़ें कमिट की गई हैं, जो मटेरियल लगाना कमिट किया गया है। दूसरा मैं आपको बताऊं कि अगर साल पहले देखें तो देयर वाज अ प्रॉब्लम, एवरीवन वाज इन्वेस्टिंग इन द गोल्ड, एवरीवन वाज इन्वेस्टिंग इन द फॉरेन करेंसी, क्योंकि डॉलर बड़ा महंगा हो रहा था और गोल्ड महंगा हो रहा था। अब अल्हम्दुलिल्लाह एक स्टेबल गवर्नमेंट आ गई है, और व्हाट वी फील इन द फ्यूचर कि अब लोगों का यही है कि इन फ्यूचर द एक्चुअल रियल गोल्ड इज अ रियल एस्टेट गोल्ड, जिसमें लोगों को ये पता है, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज वगैरह में भी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, अब गोल्ड भी आपके नीचे आ रहा है, आपका डॉलर भी एक जगह आके स्टेबल हो गया है। रियल एस्टेट के अंदर अभी करेक्शन ड्यू है, बिकॉज जब डॉलर इंक्रीज हुआ तो एक्सपर्ट्स की परचेजिंग पावर बढ़ गई, लेकिन उसके हिसाब से प्रॉपर्टी महंगी नहीं हुई, अभी भी बहुत रूम है। और खासतौर पर अगर हम लाहौर की बात करें तो व्हाट आई फील को ये पाकिस्तान का, जैसे इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, लाहौर इज द कैपिटल ऑफ पंजाब, इसे पाकिस्तान का दिल भी कहा जाता है। और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत काम हो रहा है। आप ये देखिए कि लोग जब लाहौर आते हैं, कराची से आते हैं, बाकी शहरों से आते हैं, वो कहते हैं लाहौर देख कर वाकई एक फीलिंग आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी नाइस। सो अ लॉट ऑफ डेवलपर्स आर इवन कमिंग फ्रॉम कराची एंड फ्रॉम इंटरनेशनली फ्रॉम दुबई एज वेल, एंड देयर कमिंग विद अ वर्टिकल प्रॉपर्टी, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट CBD जो अभी गुलबर्ग में बन रहा है, जहाँ के अल्हम्दुलिल्लाह शेख ज़ैद रोड की तर्ज की 500 फीट 600 फीट की हाई राइज बिल्डिंग्स बनेंगी इंशाअल्लाह। लाइक साहब, अगर आप ये बता दीजिए कि अभी ब्रेक में भी आप बता रहे थे कि ज़मीन डेवलपर्स के नाम से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मार्केट में आप लोग मुतारिफ करवा रहे हैं, वो प्रोजेक्ट्स क्या हैं, उनकी क्या खासियत है, और दूसरा ओवरसीज़ पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए आप क्या खुसूसी तौर पर इक़दाम उठा रहे हैं, भी बता दें। जी मैडम, यही कहूँगा, देखें सबसे पहले तो हम लोग एक्सक्लूसिव सेल्स एंड मार्केटिंग लोगों को सर्विसेज दे रहे हैं अबाउट देयर प्रोजेक्ट्स, जो कि मार्केट के अंदर माशाल्लाह हमारी पाकिस्तान में 38 सिटीज़ में प्रेजेंस है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें लाहौर, कराची, इस्लामाबाद है, मुल्तान है, गुजरावाला, सियालकोट, फैसलाबाद, एवरीवेयर। सो फैसिलिटेशन ये होती है कि लोग जब वहाँ होते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट हम TV पे मार्केट करते हैं तो हमारा बंदा स्टाफ ब्रोशर लेकर उनके पास ब्रीफिंग के लिए चले जाते हैं। इस तरह दुबई में भी सेटअप है, सऊदीया में भी सेटअप है, तो एक्सपर्ट्स तक हमारी रीच है। इसके अलावा इवेंट्स भी होते हैं, इंटरनेशनल इवेंट्स भी होते हैं, दुबई में भी होते हैं, सऊदीया में भी होते हैं, जहाँ हम लोगों को बुला के सारी ब्रीफ करते हैं। तो व्हाट वी आर डूइंग अवर लेवल बेस्ट इज देयर कि वी आर गिविंग देम द बेस्ट लाइफस्टाइल इन पाकिस्तान इन अफोर्डेबल प्राइसिंग। एक बंदे ने अगर सपोज 50 रुपए का रियाल था या दरम था, उससे प्रॉपर्टी खरीदी, और अब इसके बाद डिवेल्यूएशन हमारी करेंसी में हुई है, तो उसकी अमाउंट इंस्टॉलमेंट की बेसिकली पाक रुपये में वहीं खड़ी है, जबकि जब वो कन्वर्ट करता है तो वो अमाउंट धर्मों में और रियालों में कम हो गई है। तो लोगों की रीच इंक्रीज हो गई है। प्लस वी आर ट्राइंग अवर लेवल बेस्ट कि जो लाइफस्टाइल वहाँ उनको दिया जा रहा है वो उसके इक्वल हम यहाँ कुछ चीज़ें दें। इसलिए जैसे को बताया कि अब जितनी भी बिल्डिंग्स बन रही हैं वो टॉप ऑफ द लाइन बन रही हैं, चाहे वो गुलबर्ग में है, DHA में है, इवन वो हमारी ड्राइविंग रोड पे हैं। इंस्टॉलमेंट्स बड़ी अफोर्डेबल हैं ताकि लोग अपनी मंथली सेविंग्स में से अफोर्डेबल लिविंग ले सकें। और जहाँ तक बात में अभी की हुई थी ज़मीन डेवलपमेंट्स की, तो हम लोग बाकी डेवलपर्स के अलावा हमारी एक सिस्टर कंसर्न है ज़मीन डेवलपमेंट्स। सबसे पहले प्रोजेक्ट लाहौर में ज़मीन ऑपर लॉन्च किया था शाबाना जनाब पे, अल्हम्दुलिल्लाह द अपार्टमेंट बिल्डिंग इज ऑन 10 कैनाल्स, इट इज़ बीन डिलीवर्ड। उस पर क्लब, जिम, सिनेमा, स्विमिंग पूल, स्वाना, रूफटॉप गार्डन, पावर बैकअप, हर चीज़ है। और लोगों ने जिन्होंने लिया तकरीबन 100% कैपिटल गेन मिला है, और रेंटल यील्ड तकरीबन 10 से 12% है। उसके बाद ज़मीन औरम है, दैट इज़ इन गुलबर्ग एट द CBD। फिर एक ज़मीन कोटरंगल फेसिंग जिमखाना लॉन्च किया गया, इन दोनों की भी डिलीवरी इसी साल आ रही है। तो द बेसिक थिंग इज दिस कि जो ज़मीन डेवलपमेंट्स का प्रोजेक्ट है, जो टाइमली हमारी कमिटमेंट है, एक तो क्वालिटी और उसके अलावा टाइमली
डिलीवरी टू द एंड यूजर विद अ गुड पेमेंट प्लान। इनके अंदर हम लोगों ने लोगों को फ्री फर्निशिंग भी ऑफर की है और पोस्ट पोजेशन प्लान दिए हैं कि आप 1 साल में आपको पोजेशन मिल जाएगा और आप 3 साल में पेमेंट करें। इसी तरीके से ज़मीन फिनिक्स और ज़मीन जेड ये दोनों नहर पर लॉन्च किए गए हैं। सो वी आर इस्लामाबाद में ज़मीन है स्मॉल है, फिर वहाँ मॉल 35 है, मुल्तान में रोमांजा के नाम से DHA में बेहतरीन गोल्फ कोर्स बनाया गया, उसके अंदर और उसके बिल्कुल साथ कॉर्नर पे डाउन टाउन रोमांजा और गोल्फ व्यू रोमांजा 2 प्रोजेक्ट्स हैं। तो वी आर ट्राइंग ओवर लेवल बेस्ट के लोगों को ये बेहतरीन प्रोजेक्ट्स बेहतरीन लोकेशंस पे दिए जाएं। और वही जो बात आपसे पहले की थी, अफोर्डेबल लिविंग, आजकल लोग जो मर्जी कर लें, जितनी मर्जी सैलरी हो, एक वाइट कॉलर जॉब वाला अफोर्ड नहीं कर पा रहा अपने लिए अपनी छत, अपने बच्चों के लिए अपनी छत, क्योंकि वो जब एक्सपेंसेस को देखता है, अपने रेंटल को देखता है, बच्चों की फीसों को देखता है, बाकी अपनी यूटिलिटीज देखता है, तो उसके बाद उसके पास सेविंग के लिए बहुत मिनिमम अमाउंट रह जाती है। सो वी मेक अ टेलर्ड प्लान कि सर आप आए हैं, आप क्या अफोर्ड कर सकते हैं, कितनी आपके पास इस वक्त सेविंग्स है जिससे आप डाउन पेमेंट कर देंगे, आपको क्या प्लान चाहिए, तो हम लोग उनके लिए टेलर्ड प्लान बना के देते हैं। सो ये अल्हम्दुलिल्लाह ज़मीन.com पे इसलिए लोगों का ट्रस्ट भी है और इस क्रेडिबिलिटी की वजह से, क्योंकि अभी तक जो चीज़ें डिलीवर हुई हैं, जैसे आपको बताया था कि ज़डी के प्रोजेक्ट्स हमारे डिलीवर हुए हैं, उसके अलावा MM आलम रोड के ऊपर हम लोगों ने होटल अपार्टमेंट्स हैं। अ लॉट ऑफ पीपल जो कि बाहर से आते हैं, जैसे एक्सपर्ट्स के लिए आपने क्या क्या स्पेशल है, तो होटल अपार्टमेंट की बिल्डिंग्स हैं, उसमें ये होता है कि वो पाकिस्तान आते हैं, छोटी ईद पे आते हैं, बड़ी ईद पे आते हैं, न्यू ईयर पे आते हैं, महीने में मैक्सिमम 10 दिन महीने से ज़्यादा नहीं आते। तो वो एक घर को मेंटेन करना, एक अपार्टमेंट को मेंटेन करना, फिर उनके बिल्स, उनकी यूटिलिटीज, क्लीनिंग मुश्किल होता है, तो उनको हम होटल अपार्टमेंट ऑफर करते हैं, जिस पर 10 to 15% उनको रेंटल मिलता है। वो एक होटल का कमरा खरीद लेते हैं, जिसके 11 महीने की उनको, क्योंकि 1 महीना उन्हें खुद रहना होता है साल में, जो कि आके वो फ्री वाउचर यूज़ करेंगे, 11 महीने का उनको रेंट दिया जाता है, विच इज़ 10 to 15%। तो बेसिकली एक अच्छी प्रॉपर्टी से, सपोज उन्होंने 1 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी खरीदी है, तो 12 से 15 लाख रुपये साल का किराया भी मिल रहा है और आके आप 1 महीना फ्री भी रहे हैं। सब ये भी बता दें कि अब हमारे माशरे में टेक्नोलॉजी एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा कम है, और फिर आप जैसे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए भी काम करें, उस मयार को क्या यहाँ के पाकिस्तानियों के लिए भी बरकरार रखा जा रहा है, उनका ट्रस्ट गेन करने की कोशिश की जा रही है, इस फील्ड पे खुसूसी तौर पर क्या इकदाम है? इसमें देखिए डेफिनेटली वन है, व्हेनेवर दे बाय एन अपार्टमेंट, हम उनको इंटरनेशनल वहाँ से एक्सेस देते हैं। जब वो कोई प्लाजा या कोई अपार्टमेंट या कोई बिल्डिंग हमसे कोई चीज़ लेते हैं, तो एक तो हमारी लाइव कैमराज होते हैं, हमारी कंस्ट्रक्शन अपडेट्स जारी होती हैं एवरी मंथ, तो वो देख रहे होते हैं क्या क्या काम हुआ, जिस जगह मैंने पैसा लगाया वहाँ क्या काम हो रहा है। लाइव कैमराज लगे हुए हैं, उनको चाहिए तो उनको लिंक दे दिया जाता है ताकि वो अपडेट ऑफ कंस्ट्रक्शन लाइव भी देखें कि कितना काम हो रहा है। फिर उसके बाद बात आ जाती है उन लोगों की सिक्योरिटी की। अगर वो पाकिस्तान में नहीं है तो उनके जो अपार्टमेंट्स हैं उनके बाहर, उनकी एंट्रेंस पे, उनके डोर पे, उनके लॉबी में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, तो वो एक्सेस भी उनको दी जाती है ताकि उनको पता है, क्योंकि आजकल एयरबीएनबी का भी बहुत रवाज चल रहा है, लोग इसको एयरबीएनबी पर रेंट आउट कर देते हैं। और व्हाट वी फील कि सिक्योरिटी के अलावा उनको एक्सेस कार्ड दिए जाते हैं, जो कि उस कार्ड के अलावा कोई उनके अपार्टमेंट को एक्सेस नहीं कर सकता। सिक्योरिटी सर्विसेज दी जाती हैं, इंश्योरेंस दी जाती है। सो व्हाट वी आर ट्राइंग लेवल बेस्ट कि जो आजकल इंटरनेशनल चीज़ें दी जा रही हैं, हम पाकिस्तान में वो और उससे बेहतर सर्विसेज लोगों को दें, क्योंकि पाकिस्तान वो लोग ये कहते हैं कि प्रॉपर्टी लेते हुए डर लगता है कि कल को किसी किस्म का कोई मिसअप ना हो जाए, हमारी प्रॉपर्टी पे कोई कब्जा ना कर ले। तो वो जैसे आपको पहले बताया कि ड्यू डिलिजेंस फ्रॉम द लीगल डिपार्टमेंट, उसकी कंस्ट्रक्शन, उसकी कंप्लीशन, फिर उसकी ट्रांसफर, फिर उसकी मेंटेनेंस, ये सारी सर्विसेज अंडर वन रूफ ज़मीन.com के।